we have our reporters on the ground. If I can cut across to Savya, he's right there live in Patna. Nivriti, we have let's first play out the tic-tac of Nivriti Mohan. We have BJP leader and Member of Parliament Aparajita Sarang with us. Let us talk to her about the trends. Ma'am, the trends have started coming in and it is showing some good results for BJP. What is expected now? The trailer shows what the film would be like. So we are all delighted. And let me tell you that this was something which had been thought of earlier. And that is what is going to happen. NDA is heading towards a victory, but I can only say that all the Panch Pandavs would be winning together. It's a collective victory. And NDA has played its role well. Prime Minister Modi was intensely involved with the campaigning. And this is a seal of approval on the development agenda of Prime Minister Modi, which was very rightly and very nicely delivered by Shri Nitish Kumar ji on the ground. The best part is that in the past 20 years, though Nitish Kumar ji was there and we have been there for quite some time, I can only say that there is no anti-incumbency factor. And this is because people of Bihar believe Prime Minister Modi's works and they appreciate his working style. They like the ideology of Bharatiya Janata Party and the other parties of the NDA. So I think we are heading towards a collective win, and they were saying, RJD was saying that it would emerge as the single largest party. But seeing the trends, I think I will not be surprised if Bharatiya Janata Party emerges as the single largest party. So this is for the first time. If it happens, this will be for the first time, and BJP will be playing the role of a big brother this time around. No, it's not a question of big brother or small brother. I will definitely not say. See, all the Panch Pandav brothers were equally important when the Pandava and Kaurava battle was fought. So I think all Panch Pandavs are together and it is a collective victory. I have been emphasizing this. So I think we are all heading towards the collective win, and again we'll be forming the government in Bihar, and development agenda was our focus, and I'm sure in the days to come, under the leadership of NDA, under the leadership of Prime Minister Modi from the center, the state government would be leading the show and would be focusing on more and more of development of the Biharis. मुझे तो अपने लोकतंत्र पे बहुत विश्वास है जो होगा, क्योंकि मैं भी अभी बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं ऐसा नहीं है। मैं टीवी देख रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हर एक ट्रेंड को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन एक विश्वास मन में बन गया है कि जो ट्रेंड अभी दिखाया जा रहा है वो आगे तक फॉलो होगा अंत तक। ये 1 महीने मैंने ऐसा जो भी एक्सपीरियंस किया है वो कभी किसी किताब से मैं नहीं सीख सकती थी, ना ही किसी यूनिवर्सिटी से सीख सकती थी। ये जो मुझे एक्सपोजर मिला है, लोगों के बीच में जो प्यार मिला है मुझे, ये इसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को कि एक युवा लड़की को, 25 साल की लड़की को ये इतनी बड़ी दुनिया देने के लिए। देखिए, महागठबंधन और राजद के नेता हार स्वीकार करके बयानबाजी करने लगे। वो कल से ही बयानबाजी कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि एनडीए भारी बहुमत से जीतने वाला है, इसलिए हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर कैसे फोड़े, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। जो अभी रुझान भी आए हैं, जो अभी 2-3 राउंड की गिनती हो गई है, पोस्टल बैलेट में भी हम आगे थे, जब राउंड की गिनती अभी हो रही है तब भी हम आगे हैं। इसलिए स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगा। एनडीए पर विश्वास है बिहार की जनता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास है बिहार की जनता को। उसी का प्रकटीकरण है कि हमारी सीटें काफी ज्यादा दिख रही हैं। जनता ने तय करेगी भाई। आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कीजिए कि क्या कमी है और क्यों इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है कि 20 साल के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है, ये भी राजनीतिक पंडितों को देखना चाहिए कि 20 साल सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। क्यों? इसका मतलब बिहार की जनता में जो वो काम किए हैं वो फेथ है ना। और क्या है, अगर वोट की बात हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर वोट की बात हो
तो ये तो जात की राजनीति की बात हो तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहां पर लोग हिसाब जोड़ते थे कि ये कास्ट का नंबर इतना, इस कास्ट का। नीतीश जी का कास्ट का क्या, उनको तो सबका समर्थन है। ये नैरेटिव उन्होंने बदला है बिहार में, ये समझना चाहिए। पूरे बिहार के हर एक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है, तभी आज वो सबसे पॉपुलर लीडर बिहार के, सब समुदाय का एक्सेप्टेंस है। बिहारी पन से लोगों ने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया। ये हर चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए जनतंत्र का सबक और जनादेश का संदेश होता है, और उस जनतंत्र के सबक और जनादेश के संदेश को विनम्रता के साथ नतमस्तक होकर के सबको स्वीकार करना चाहिए। जहाँ जो तक है कि जो जीत की जलेबी है और हार का हलवा, दोनों का अपना जो है वो जायका होता है। जनतंत्र में जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों का जायका होता है। उसे जो है वो विनम्रता के साथ जो है वो उसका उस जायके का को स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर।